हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइनअप्स वाला चैप्टर। साइनअप्स वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। पहले तो टाइप्स ऑफ साइनअप्स। व्हाट आर द टाइप ऑफ साइनअप्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनअप्स, केमिकल साइनअप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनअप्स. व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ साइनअप्स? Presynaptic terminal. What is physiological anatomy of presynaptic terminal? What are the things we have? What mitochondria, or there are calcium channels? The role of calcium ions in the transmission of neurotransmitter and the action potential or neuro impulse. What are the receptor protein we have in the postsynaptic membrane? There are ion channels or ionotropic receptor or the metabotropic receptor. How the postsynaptic neuron excited or inhibited, excitation and inhibition. What are the neurotransmitters we have? There are small molecules of neurotransmitters like acetylcholine and neuropeptide. There are gastrin substance P. There are many type of hormones that are released from the hypothalamus or the pituitary gland that are act as a neurotransmitter. What is the co-release of small molecule and neuropeptide? What is the co-transmission? What differential co-transmission or spatial segregation of the small molecule and neuropeptides? What are the electrical events we have in the new postsynaptic neuron? What is fatigue of synapse? The effect of acidosis and alkalosis in the neuron excitability or inhibition or transmission of the impulse. Effect of hypoxia. What are the drugs we have? And synaptic delay. So first we see the types of synapses. तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये है एक ब्रेन, ये टेम्पोरल लोब, मिड ब्रेन का पार्ट, पोन्स का पार्ट एंड मेडुला का पार्ट, दिस सेरिबेलम एंड दिस कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. बहुत ही वाहियात डायग्राम है पर समझने के लिए आते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं. तो जो मैं बोल रहा हूँ साइनैप्स होता है केमिकल साइनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. तो व्हाट इज केमिकल साइनैप्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स? देयर आर मेजर डिफरेंसेस. फर्स्ट वी हैव टू first point is in the CNS, a central nervous system, that is brain plus spinal cord. There are major synapse we have is chemical synapse, not electrical synapse. There are examples of electrical synapse that we have in the smooth muscles of GIT or cardiac muscle. We call it gap junction. Gap junction is nothing but electrical synapse. But the major synapse we have in the central nervous system is chemical synapse. So what is chemical synapse? What is chemical synapse? So मैं जो बोल रहा था, मैं डायग्राम लेके आ गया टाइटन से. This is chemical synapse and this is electrical synapse. So you see, this is presynaptic terminal and this is postsynaptic terminal. Okay. जो एक्शन पोटेंशियल है वही है क्या? नर्व इम्पल्स. तो नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं. जब एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? प्रीसाइनेट टर्मिनल में आ रहा है. Whenever action potential comes, there is a voltage change in the presynaptic terminal. There is depolarization. When depolarization of presynaptic terminal occurs, there are voltage gated calcium channels. What I call voltage gated. ये जो है voltage gated calcium channels है. voltage gated calcium channel का मतलब है ये voltage से खुलता है. When a particular voltage, let's say plus 10 millivolt, जब प्लस 10 millivolt होगा प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल में, तब ये कैल्शियम चैनल खुलेगा. तो लेट्स से देयर इज minus 60 millivolt and the voltage comes to 10 millivolt and the calcium channels open. So when action potential came, the voltage get calcium channels opens and the calcium comes from fluid, interstitial fluid to the
When calcium comes into the presynaptic terminal, the synaptic vesicle, there are synaptic vesicles. What is synaptic vesicles? That contains neurotransmitters in the presynaptic terminal. So when calcium comes into the presynaptic terminal, the synaptic vesicles fuse to the membrane of presynaptic terminal, and that exocytosis occur, and the release of neurotransmitter occur, and the neurotransmitter can bind to the ionotropic receptor or metabotropic receptor. This is chemical synapses. There is synaptic cleft between presynaptic and postsynaptic membrane, but in the electrical synapses, there is no gap or very minimum gap, that is 20 to 40 angstrom, and there is synaptic cleft 200 to 300 angstrom. There is gap junction between presynaptic and postsynaptic, so there can be flow of the ions bidirectional. This is unidirectional. These are major differences between chemical and electrical synapses. So going to the first point is here types of synapses chemical. So let's see physiological anatomy of synapse. That diagram I show to you is also physiological anatomy of synapse, but we see only chemical type. This is also clear because the diagram we see also chemical synapse physiological anatomy diagram. So physiological anatomy of chemical synapse. तो एक क्या होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पहले यहाँ पर कैसे इम्पल्स आता है, इस डायरेक्शन में इम्पल्स आता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल आता है। मान लो ये है रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, इससे ऊपर आएगा, ये मान लो थ्रेशोल्ड है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, हाइपर पोलराइजेशन, देन कमिंग टू रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स इज कमिंग इनटू द डायरेक्शन। तो जब इम्पल्स इस तरफ आएगा तब क्या होगा, आयन का फ्लो होगा, तब वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज का चेंज हुआ, फिर यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यहाँ पर चेंज हुआ। तो अगर इस डायरेक्शन में इम्पल्स आएगा तो वोल्टेज का चेंज हो रहा है, और यहाँ पर है वोल्टेज ग्रेड कैल्शियम चैनल। अगर वोल्टेज का चेंज होगा ये कैल्शियम चैनल क्या होगा, ओपन होगा। अगर कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो कैल्शियम है, इंटरस्टिशियल यहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, बाहर से अंदर कैल्शियम आएगा। फिर जब बाहर से अंदर कैल्शियम आ ही गया तो यहाँ पर है साइनेप्टिक वेसिकल, release sites in the synaptic vesicle. When calcium bind to the release site, the synaptic vesicle has neurotransmitter. synaptic vesicles में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। क्लिनिकल साइनेप्स में बहुत रिलीज हो जो न्यूरो, हाँ, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनते हैं ये बन सकते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है कहाँ बनते हैं, बनते कहाँ हैं, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में भी बन सकते हैं, और ये सेल बॉडी में भी बन सकते हैं, और सोमा में भी बन सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका एक न्यूरॉन है, ये इसका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये है सेल बॉडी। तो यहाँ पर भी बन सकते हैं और यहाँ पर भी बन सकते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जो छोटे छोटे हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में बनने जाएंगे, और जो बड़े बड़े हैं वो कहाँ पर बनते हैं, सेल बॉडी में बनते हैं। तो छोटे छोटे कौन है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बहुत छोटा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इटसेल्फ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के सेल बॉडी में बन जाते हैं।
जो बड़े बड़े गैस्ट्रिन है, सब्सटेंस पी है, हाइपोथैलेमिक सम हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस से पीट्यूटरी में फ्लो करते हैं ना कुछ हार्मोन्स, हाँ करते हैं, तो वो सब सेल बॉडी में बनते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी डिफरेंस है। तो जो भी है बन के क्या हुआ, बन गया साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर स्टोर हो गया। अब जब इम्पल्स आया तो कैल्शियम आया अंदर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, साइनेप्टिक वेसिकल क्या हुआ, फ्यूज हुआ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑकर्स, न्यूरोट्रांसमीटर आ गया क्या पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट 200 to 300 एंगस्ट्रॉम का। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करेंगे, अब देखो ये है एक्शन पोटेंशियल, अब ये एक्शन पोटेंशियल को यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो एक्शन पोटेंशियल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज का चेंज है, तो वोल्टेज का चेंज यहाँ पर भी होना पड़ेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज का चेंज होने के लिए सोडियम को अंदर आना पड़ेगा, यानी प्लस को, तो मैं सोडियम चैनल बना देता हूँ, बट ये सोडियम ऐसे तो नहीं अंदर आएगा बिकॉज ये वोल्टेज गेटेड है, तो पहले वोल्टेज को क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड पे जाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर है, ये है एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का भी एक क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो इसको थ्रेशोल्ड पे जाना पड़ेगा, अगर थ्रेशोल्ड पे जाएगा तो Na प्लस का एंट्री होगा, और Na प्लस का एंट्री होगा सॉरी जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आएगा तो कुछ Na प्लस को अंदर आना पड़ेगा, कुछ सम Na प्लस को कुछ अंदर जाना पड़ेगा, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, थ्रेशोल्ड पे जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया तो वोल्टेज गेटेड Na प्लस खुलेगा, तो बहुत सारे Na प्लस अंदर आएंगे, तब पोटेंशियल जाएगा एक्शन पोटेंशियल पे, फिर के प्लस ओपन होगा, फिर के प्लस बाहर जाएगा, फिर रेस्टिंग में पोटेंशियल पे जाएगा, फिर भी के प्लस थोड़ा बाहर जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, फिर रेस्टिंग में पोटेंशियल पे जाएगा, तो कुछ Na प्लस को पहले अंदर जाना पड़ेगा, पहले मान लो -60 है या -65 है, तो -65 से 45 जाना पड़ेगा पहले, ओके। कैसे जाएगा, Na प्लस अंदर जाएगा, Na प्लस अगर अंदर जाए तो -65 से क्या होगा, -45 में जाएगा, तो +20 मिलीवोल्ट चाहिए, तो इसको ही कहते हैं EPSP, इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी, वाई एक्साइटेटरी, बिकॉज द नेक्स्ट न्यूरॉन इज एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और एक होता है वो बाद में बोलूँगा, EPSP मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल दैट इज +20 इन दिस केस। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ Na प्लस को अंदर लाना पड़ेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कैसे जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है आयन चैनल, तो neurotransmitter will attach to an ion channel, there is some type of ion channel we have post synaptic membrane, आयन चैनल मतलब क्या होता है, वो है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल, जब न्यूरोट्रांसमीटर इस आयन चैनल में अटैच होगा, when the neurotransmitter attaches to the ion channel some ions comes into the next post synaptic membrane, ये Na प्लस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, Na प्लस भी हो सकता है अगर एक्साइटेड ही हुआ, ये क्या कर सकता है, के प्लस भी हो सकता है, के प्लस अगर हुआ तो के प्लस बाहर जाएगा, वो इनहिबिटर ही हो जाएगा, एक क्लोराइड चैनल भी हो सकता है, क्लोराइड चैनल अगर हुआ क्लोराइड अंदर जाएगा तो इनहिबिशन होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो मान लेते हैं ये है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट विल अटैच टू द आयन चैनल दैट इज आल्सो एक्साइटेटरी, Na प्लस अंदर गया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, Na प्लस अंदर गया, अगर Na प्लस अंदर गया है तो -65 से -45 होता है, अर्थात EPSP हुआ, EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, तो देन -45 हुआ देन क्या हुआ, वोल्टेज गेट चैनल खुल गया, सारे वोल्टेज गेट चैनल खुल गए, तो बहुत सारे Na प्लस अंदर है, बहुत सारे यहाँ से यहाँ हो गया, तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया,
ये एक्शन पोटेंशियल इसमें न्यूरॉन से लगा, तो फिर इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक इम्पल्स चला गया। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आयन चैनल है। ये आयन चैनल भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, इसको कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। यह मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, एक होता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ये न्यूरोट्रांसमीटर आयन चैनल के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम चालू कर देता है। ये डायरेक्टली आयन को अंदर नहीं लेता, इस सेकेंड मैसेंजर सिस्टम चालू कर देता है। तो वही हाँ, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए बहुत सारे। तो प्रीसाइनेड मेम्ब्रेन में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखे जाते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखे तो वो देखेगा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रीसाइनेटिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि एनर्जी चाहिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया। So this is the all physiological anatomy, all the points we have pre-synaptic terminal. The role of calcium ions. What is the role of calcium ion? To fuse the synaptic vesicle to the pre-synaptic terminal and release of neurotransmitter. तो what are the receptor protein we have? तो मैं जैसे मैंने बोला था आयन चैनल है हमारे पास और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स है हमारे पास। आयन चैनल्स जो आयन को ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर? This is an interesting point. Metabotropic receptors. Metabotropic receptors. तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बहुत सारे हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर जो काम करते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम से काम करते हैं। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। व्हाट इज सेकेंड मैसेंजर सिस्टम? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट बहुत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। G protein, GPCR, G protein coupled receptors, G protein coupled receptors, G protein coupled receptor मतलब coupled receptor मतलब जो रिसेप्टर के पास G protein है। coupled मतलब तो वही है ना एक साथ। तो G रिसेप्टर के पास G protein है, तो G protein क्या है? What is G protein? G protein एक प्रोटीन है जिसके पास अल्फा कॉम्पोनेंट है, जिसके पास बीटा कॉम्पोनेंट है, जिसके पास गामा कॉम्पोनेंट है। तो ये एक प्रोटीन है जिसके पास अल्फा कंपोनेंट है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। बट व्हाई इट इज कॉल्ड जी प्रोटीन? व्हाट इज जी? वेयर जी मीन्स इज जीडीपी। ये जो जी प्रोटीन है इसके साथ जीटीपी बाइंड करते हैं, जीडीपी। मैं विस्तार से समझाता हूँ। लाइक आई से देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट विल बाइंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो बाइंड कर सकता है वो आयन चैनल के साथ भी बाइंड कर सकता है, वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर सकता है। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, तो मेटाबोट्रोपिक मैं मान के चलता हूँ हमारे पास जीपीसीआर है। जीपीसीआर इज अ टाइप ऑफ सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन मतलब सांप के जैसा, ये रहा सांप। तो जीपीसीआर 1 2 3 4 5 6 सॉरी ऐसा एक रिसेप्टर है जिसके साथ यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इसके साथ जीटीपी बाइंड किया है। ये है जी प्रोटीन, ये है जी प्रोटीन और ये है पूरा रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ये है जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर गया। जब न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ जब न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड करेगा तब ये जो जीटीपी है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
will replace the GDP. GDP आएगा, GDP को लात मार के भगा देगा, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, GDP, जो अल्फा सब यूनिट है। जब GDP अटैच होता है ये होता है इनएक्टिव, अब GTP अटैच होता है ये हो जाता है एक्टिव। So alpha subunit when GTP binds to the G protein, alpha subunit of the G protein will inactive. When GTP binds, it get activated. तो GTP जब बाइंड कर गया, ये बीटा है गामा है, अल्फा क्या हुआ, एक्टिव हो गया, अल्फा बीटा और गामा से बिछड़ गया, तो अल्फा अलग हो गया और बीटा और गामा अलग हो गया जब GTP बाइंड किया। तो GTP यहाँ पर है। अब ये जो अल्फा कंपोनेंट है विथ GTP ये जाएगा एक एंजाइम के पास जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेस। तो अल्फा कंपोनेंट जो है एडिनाइल साइक्लेस के पास जाएगा और एडिनाइल साइक्लेस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी का करेगा। साइक्लिक एएमपी है सेकेंड मैसेंजर, ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे के प्लस चैनल को ओपन करेगा, ओपन द के प्लस चैनल, तो साइक्लिक एएमपी ओपन के प्लस चैनल, देन ये जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, बहुत सारे जीन ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन होगा, बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन एंजाइम बनेंगे, एंजाइम से बहुत सारे काम होंगे। एंजाइम से क्या होगा, एंजाइम क्या करेगा, बहुत सारे रिसेप्टर लगाएगा Na प्लस का, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी Cl माइनस, so that will depend on the which type of neurotransmitter will coming। जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, के प्लस चैनल ओपन करेगा तो इनहिबिशन होगा और बहुत सारे काम करेगा। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम से काम करते हैं। तो हमने देख लिया रिसेप्टर प्रोटीन आयन चैनल जो आयन का ट्रांसफर करता है और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। तो एक्साइटेशन कैसे होगा, एक्साइटेशन कैसे होगा, अगर Na प्लस अंदर आएगा एक्साइटेशन होगा, जब क्लोरीन Cl माइनस अंदर आएगा तो क्या होगा, इनहिबिशन होगा, जब के प्लस बाहर जाएगा क्या होगा, इनहिबिशन होगा, जब कैल्शियम अंदर आएगा एक्साइटेशन होगा। अच्छा, जब Na प्लस का रिसेप्टर ज़्यादा बनेगा तो एक्साइटेशन होगा, जब Cl माइनस ज़्यादा बनेगा इनहिबिशन होगा, ऐसे होता है। तो आयन के ट्रांसफर से होता है। व्हाट आर द न्यूरोपेप्टाइड्स वी हैव, small molecules neurotransmitter we have, a neuropeptide we have. The neuropeptide are large molecular weight. Let's see, there are small molecules, there are large molecules, neuropeptides। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, रैपिडली एक्ट करता है, क्योंकि छोटा है। और छोटा कहाँ पर बनता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में बनता है, क्योंकि ये छोटा है, आसानी से बन जाता है। There are class 1, class 2, class 3 and class 4 small molecule neurotransmitters: acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, dopamine, serotonin, melatonin, histamine। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये बहुत खास है, वो मैं समझाऊंगा कैसे बनता है और कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है। नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, dopamine we have in the sympathetic nervous system and acetylcholine we have in the parasympathetic nervous system. There are serotonin, there are melatonin, there is histamine. We have GABA. GABA is also a type of small molecule neurotransmitter. This is inhibitory. There are glycine, there are glutamate, there are aspartate, ATP, arachidonic acid, nitrous oxide, ये खास है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। There are neuropeptides, we have slowly acting neurotransmitter। तो slowly acting कहाँ बनता है, न्यूरोपेप्टाइड तो बड़े मॉलिक्यूल से होता है। बड़े मॉलिक्यूल कहाँ बनते हैं, सेल बॉडी और सोमा में बनते हैं। There are hypothalamic releasing hormone, they are also neuropeptide, thyrotropin releasing hormone, luteinizing hormone, somatostatin, and we have pituitary peptides, and the peptide react on gut and brain, many type।
एसिटाइल कोलिन, खास बात। एसिटाइल कोलिन कहाँ बनता है? एसिटाइल कोलिन क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है। स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है। स्मॉल मॉलिक्यूल कहाँ बनेगा? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में बनेगा। कैसे बनता है? तो लेट्स से दिस इज द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और यह साइनेप्टिक वेसिकल और दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। तो एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 आलू और 1 मिर्च। नहीं नहीं नहीं, हमें चाहिए एसिटाइल को एंजाइम में। तो एसिटाइल को एंजाइम में चाहिए और चाहिए कोलिन। 2 मॉलिक्यूल है एसिटाइल को एंजाइम में और कोलिन। तो एक एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेंस मतलब ट्रांसफर करेगा। तो क्या करेगा? कोलिन को एसिटाइल ग्रुप में ट्रांसफर करेगा और कोए को लात मार के भगा देगा। तो को एंजाइम में निकल जाएगा और बन जाएगा एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन बन गया। तो एसिटाइल कोलिन जब बन जाएगा, लेट से यहाँ पर बना, क्या होगा? एक्टिवली एब्जॉर्ब। एसिटाइल कोलिन बन गया। एसिटाइल कोलिन जब बन गया तो क्या होगा? एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएगा साइनेप्टिक वेसिकल में और जब रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। अब देखते हैं एसिटाइल कोलिन अगर बन गया और रिलीज हो गया तो ऐसा तो थोड़ी नहीं होगा। तो एसिटाइल कोलिन बन गया, एक एक्शन पोटेंशियल आया, साइनेप्टिक वेसिकल रिलीज कर दिया एसिटाइल कोलिन, तो फिर से बनेगा? ऐसा नहीं होता। एसिटाइल कोलिन फिर से बन जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एक बार एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया फिर से पहले से बनाना पड़ेगा, फिर एसिटाइल को एंजाइम में कोलिन मिलके फिर से एसिटाइल कोलिन बन रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर एसिटाइल कोलिन बन गया, यहाँ पर रिलीज हो गया और काम भी आ गया, रिसेप्टर में अटैच हो गया, फिर क्या होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिन एस्टरेज। ये कोलिन एस्टरेज है एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है एसीटेट में और कोलिन फिर एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर और फिर एसिटाइल कोलिन बनता है। ऐसे होता है। हाँ, फिर को रिलीज को ट्रांसमिशन। तो हमने देखा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और हमने देखा क्या? हमने क्या देखा? हमने देखा हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर है और क्या है? हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है और हमारे पास क्या है? न्यूरोपेप्टाइड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पी साइनेप्टिक टर्मिनल में स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो और न्यूरोपेप्टाइड भी हो। तो वो कैसे रिलीज होता है? एक हो सकता है एक साइनेप्टिक वेसिकल में ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और लार्ज मॉलिक्यूल्स है और वो रिलीज कर रहे हैं। ओके, एक हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है। एक हो सकता है ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ पर क्या है? अलग अलग साइनेप्टिक वेसिकल में अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इस साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोपेप्टाइड्स है। तो इसको कहते हैं एक साइनेप्टिक वेसिकल में अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी है न्यूरोपेप्टाइड्स भी है, इसको कहते हैं को रिलीज। एक साथ रिलीज हो रहा है और इसको कहते हैं। तो हमने देखा को रिलीज कैसे होता है। अब देखते हैं को ट्रांसमिशन क्या होता है। को ट्रांसमिशन 2 तरह का हो सकता है। एक होता है डिफरेंशियल Ca2+ सेंसिटिविटी और एक होता है स्पेशियल सेग्रीगेशन। तो अभी ये मैं गाइटन से ही दिखा देता हूँ। ये देखो, एक है को रिलीज, एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम अंदर गया,
एक ही साइन एक्टिव वेसिकल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी है न्यूरोपेप्टाइड में। ग्रीन वाला स्मॉल मॉलिक्यूल है और पर्पल वाला क्या है, क्या न्यूरोपेप्टाइड है। साइन एक्टिव वेसिकल में एक ही साथ है तो एक ही साथ रिलीज भी हो गया। एक होता है को ट्रांसमिशन डिफरेंशियल कैल्शियम 2+ सेंसिटिविटी। और इसका जो मतलब है बहुत अच्छा है। मतलब मान लो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाला साइन एक्टिव वेसिकल है, ये न्यूरोपेप्टाइड वाला है। तो इस कैल्शियम चैनल को ओपन होने के लिए मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल चाहिए। इसका कैल्शियम 2+ का आना रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जो मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ज़्यादा CF2+ अंदर आएगा। तो इसलिए बोला है डिफरेंशियल कैल्शियम 2+ सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगा फिर ही ओपन होगा। इसके लिए इसको को रिलीज नहीं को ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो अगर एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये वाला स्मॉल मॉलिक्यूल वाला तो हो गया, ये नहीं होगा। इसके लिए 4 एक्शन पोटेंशियल आना पड़ेगा तब होगा। और एक है स्पेशियल सेग्रीगेशन। ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्पेस में, स्पेशियल मतलब स्पेस में 3D स्पेस में सेग्रीगेट हो गया। तो ये है co-release. Both transmitters are stored in the same set of synaptic vesicle released together when the action potential reaches. With co-transmission, transmitters are stored different populations of synaptic vesicle with differential release mediated by calcium and sensitivity. A single action potential might release one set of vesicles, whereas multiple action potential might be required to release both set of vesicles. Co-transmission can also rely on spatial segregation of vesicles. Then we come into the next point, that is, हाँ हो गया, वो था इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो मैंने बोल दिया था। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैंने बोल दिया जो Na+ आया वो एक्शन पोटेंशियल जाएगा। जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है वो कैसे एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड में पहुंचता है, फिर डीपोलराइजेशन कैसे होता है, वो इलेक्ट्रिकल इवेंट के अंदर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है जो फैटिग ऑफ साइनेप्स, इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस एल्कालोसिस, इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, ड्रग्स एंड साइनेप्टिक डिले। तो व्हाट इज नेक्स्ट वी सी इज फैटिग ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो मैं गाइडोन से ही पढ़ा देता हूँ ये। When excitatory synapses are repeatedly stimulated and repeated, fatigue क्या होता है। तो एक एग्जांपल है एपिलेप्टिक सीजर्स का। For example, fatigue is probably most important means whereby the excess excitability of the brain during an epileptic seizure finally subdued so that seizure ceases. तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट होता है एपिलेप्टिक सीजर। तो अगर ये फैटिग नहीं होता हाइपर एक्साइटेबिलिटी तो सीजर तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। तो फैटिग क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट न्यूरल एक्टिविटी। तभी तो हाइपर एक्टिविटी स्टेट ऑफ द सीजर सीजेस। फैटिग होता है तो फैटिग होता नहीं होता तो सीजर सीज भी नहीं होता। फैटिग होता है तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ द स्टेट ऑफ द न्यूरॉन सीजेस एंड सीजर सीजेस। दिस इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। देन एसिडोसिस एंड एल्कालोसिस। हाँ ये फैटिग होता है कहाँ पर, क्यों होता है। तो एक जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर तो ये नहीं अनलिमिटेड है। तो अगर तुम एक्साइट करते रहोगे तो न्यूरोट्रांसमीटर भी ख़त्म होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म होगा फिर स्टेट भी ख़त्म हो जाएगा वो। तो सीजर में एक्साइटेबिलिटी ऐसे ही ख़त्म होता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, तो अगर Na+ को अंदर आना है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो बनाना पड़ेगा। तो एक्साइट करते 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 अगर रेट ऑफ द एक्साइटेशन इज ग्रेटर देन द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ द आयंस, मतलब तो जो Na+ अंदर है उसको बाहर भी फेंकना है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। और एक्साइटेशन का रेट ही इतना ज़्यादा है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बना पा रहा तो सीज हो जाएगा ऐसे। तो फिर आता है एसिडोसिस एल्कालोसिस का इफेक्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। तो एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, एल्कालोसिस का मतलब क्या होता है। तो पीएच अगर कम हो गया तो एसिडोसिस, ज़्यादा हो गया तो एल्कालोसिस। एल्कालोसिस एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हम देखते हैं
एपिलेप्टिक सीजर में पी ज़्यादा हो जाता है, 7.4 से 7.8 टू 80 हो जाता है, तो एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होता है। और एसिडोसिस डिक्रीज करता है। डायबिटिक केस इन यूरिक एसिडोसिस, तो कोमा ऑकर्स, एक्साइटेबिलिटी नहीं होता। हाइपोक्सिया में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचता तो भी न्यूरल एक्साइटेबिलिटी नहीं होता, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ब्लड फ्लो अगर ब्रेन में नहीं होता 3 से 7 सेकंड के लिए, फिर भी अनकॉन्शियस हो जाता है। ड्रग्स के अंदर 3 चीज़ है, एक है कैफीन, एक है थियोफिलीन, एक है थियोब्रोमीन। तो कॉफ़ी में ज़्यादातर कैफीन पाया जाता है, टी में थियोफिलीन, कोकोआ में थियोब्रोमीन। ये क्या करते हैं, many drugs are known to increase excitability. Caffeine, theophylline, theobromine, which are found increase the neuron excitability. And strychnine is inhibit action transmission substance. आ जाता है synaptic delay. So during transmission of neural signal from presynaptic neuron to postsynaptic neuron, a certain amount of time is consumed in the process. तो जो ट्रांसमीटर सब्सटेंस है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में एक्ट करके इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, वहाँ पर कुछ टाइम का डिले है और टाइम कंज्यूम हो जाता है। कैसे, एक होता है डिस्चार्ज ऑफ द ट्रांसमीटर सब्सटेंस में प्री साइनेप्टिक, तो न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या करता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से साइनेप्टिक क्लेफ में रिलीज करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज में एक टाइम है, डिफ्यूजन में इस टाइम है, पोस्ट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में जाने का जो गैप है वो गया है 200 टू 300 एंगस्ट्रॉम। उसको डिफ्यूजन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक्शन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेम्ब्रेन ट्रांसमीटर में, फिर परमिएबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, इनवर्ट डिफ्यूजन होगा, ईपीएस भी आएगा। इसमें बहुत 0.5 मिली सेकेंड तक टाइम चला जाता है, इसको ही कहते हैं साइनेप्टिक डिले। तो हमारा टॉपिक तो हो गया, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिस आउट किया है मैंने, मुझे पता है। तो ये सब हो गया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी है थोड़ा, जो है समेशन ऑफ समेशन समेशन 2 तरह का होता है, एक होता है स्पेशियल समेशन, एक होता है टेम्पोरल समेशन। तो जो मैंने बोला ईपीएसपी, और हाँ ईपीएसपी की तरह आईपीएसपी भी होता है, तो यह है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी यह था इनहिबिटरी। तो अगर इनहिबिशन होगा तो इनहिबिटरी होगा और एक्साइटेटरी इनहिबिटर होगा, वो बात नहीं है। बात क्या है कि अगर हम देखें तो सेल बॉडी जो है, अगर हम देखें ये मान लो ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है -65 है, और इसको थ्रेशोल्ड में जाना है -45 तक, तो +20 मिली वोल्ट का ईपीएसपी लगेगा। बट ये नहीं है कि एक साइनेप्टिक नॉब ने न्यूरोट्रांसमीटर दे दिया और उससे Na+ आ गया तो +20 मिली वोल्ट आ जाएगा। एक प्री साइनेप्टिक नॉब और टर्मिनल से 0.5 टू 1 मिली वोल्ट तक ईपीएसपी आ जाए, ईपीएसपी तो नहीं पर ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है वोल्टेज, तो -65 से -64 होगा, तो -45 में कैसे पहुंचता है, तो वो तो होता है समेशन से। समेशन का मतलब होता है इस एक सेल बॉडी को सेल बॉडी के ईपीएसपी को पहुंचाने के लिए 16 प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एक साथ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, एक साथ साइमल्टेनियस, फिर जाके सब ऐड होता है मतलब मान लो एक ने इतना किया, मान लो ये है थ्रेशोल्ड, तो
एक ने इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर थ्रेशोल्ड पहुंचा। तो हर एक को 0.5 और 1 के बीच कंट्रीब्यूट करना है, फिर मिला 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 के समेशन करके +20 EPS भी पहुंचता है। इसको ही कहते हैं समेशन। तो स्पेशियल समेशन भी होता है, टेम्पोरल समेशन भी होता है। स्पेशियल समेशन मतलब होता है कि बहुत सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, एक 3D स्पेस में है, तो वो एक साथ कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आता है, अगर ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल चारों ओर स्पेस में है तो एक साथ सोमा का कैसे चेंज हो रहा है। ये अगर Na प्लस अंदर लिया, इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के वजह से अगर 0.5 से 1 मिलीवोल्ट चेंज हुआ तो पूरा सोमा में कैसे चेंज हो रहा है। ऐसे चेंज हो रहा है कि सोमा का साइज होता है 80, सोमा का साइज होता है 80 to 100, आई एम फॉरगेटिंग द यूनिट। तो जो सोमा का साइज होता है बहुत बड़ा होता है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। इसीलिए सोमा का एक साथ, एक सेल बॉडी का एक साथ ही वोल्टेज जो है पूरा चेंज होता है एक साथ। जो एक होता है स्पेशल समेशन। स्पेशल समेशन में क्या होता है, सारे जो प्रीसेंट टर्मिनल एक साथ न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं, 3D स्पेस में होता है, स्पेशल समेशन हो जाता है। और टेम्पोरल समेशन में क्या होता है, टेम्पोरल समेशन इज डिफरेंट। टेम्पोरल समेशन इज डिफरेंट। टेम्पोरल समेशन में एक ही प्रीसेंट टर्मिनल बार बार रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है, अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक चैनल खुला, मान लो पोस्ट साइनिक मेम्ब्रेन में ये चैनल खुला, तो 15 मिली सेकेंड तक इसका इफेक्ट रहता है। अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के एक रिसेप्टर को ऑन किया तो 15 मिली सेकेंड तक उसका इफेक्ट रहता है। तो इस 15 मिली सेकेंड के गैप में प्री साइनेप्टिक टर्मिनल फिर से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है। तो ऐसे ऐसे एक ही प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बार बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके समेशन कर देता है। इसको कहते हैं टेम्पोरल समेशन। तो आई थिंक आई tried to complete the sign-ups as short as possible. So thank you.